بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. خوش آمدید. آئیے شعر کہیں، پہرو نہیں کچھ دیر کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شعراء اکرام، ممبرس اور شاہرین کرام، خوش آمدید. حضرات، محفل مشاعرہ اور اس سے جڑے سارے شعراء اکرام ممبر حضرات کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس مجلس میں میں آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ اسکرین شیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر احمد علی بقی، جناب اسرار احمد رازی، جناب منور علی مختصر، جناب ساز دہلوی صاحب، محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ، انجینئر سخی سرمد صاحب، محترمہ نگار ناز صاحبہ، پروفیسر طارق منیر، جناب ظفر اکبر، اور خاکی صاحب. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ محفل مشاعرہ میں نے 2600 میں فیس بک پر قائم کیا تھا. آج کے اس دن اس کو قائم ہوئے پورے 15 سال ہوتے ہیں. اس محفل کے زیر اہتمام کئی سال تک ہم مشاعرے فیس بک پر منعقد کرتے رہے ہیں، اور وہی مشاعرے اب ہم زوم پر منعقد کر رہے ہیں. مشاعرے جو ہم زوم پر منعقد کرتے ہیں یہ اس کی 5ویں نشست ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ محفل مشاعرہ ہو یا کوئی اور بزم اردو کی بابت، اردو کے پروانوں کا جوش و خروش اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح قائم ہے. میری دعا ہے کہ سلسلہ ایسے ہی قائم و دائم رہے. آمین.
یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں فیس بک نے اردو کے پروانوں کو جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، وہیں آپ سب نے اپنی بے لوث محبت اردو سے پرخلوص اپنی محنت اور انتھک کوششوں سے اس میں چار چاند لگا دیے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں امریکہ نیو جرسی سے محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ، انڈیا گلبرگہ سے انجینئر سخی سرمد صاحب، دہلی سے جناب ساز دہلوی صاحب اور محترمہ نگار داس صاحبہ، یہ پہلی بار ہمارے اس مشاعرے میں زوم کے مشاعرے میں جڑے ہیں۔ جناب ساز دہلوی اور محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ سابق میں فیس بک پر محفل مشاعرہ کے محفلوں میں سرگرم حصہ لیتے رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم عزیز بلگامی صاحب کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں اس مشاعرے کی صدارت کرنی تھی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ اس محفل میں شریک نہیں ہو پائے۔ ہمارے ساتھ جو نئے شعراء کرام جڑے ہیں ان کے تعلق سے میں کچھ کہتا چلوں۔ محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ، آپ نیو جرسی سے ہیں، اور رضیہ کاظمی ایک مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ہندوستان صوبہ اتر پردیش کے مشہور ادبی و ثقافتی شہر الہ آباد میں ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ والد سید مومن حسین شعلہ صاحب دیوان شاعر تھے۔ الہ آباد سے ہی MA LT تک تعمیل حاصل کی، تعامر شعبہ تعلیم سے وابستہ رہیں اور پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئی۔ ابتدا میں طبیعت افسانہ نگار کی طرف مائل رہی آپ کی، لیکن پھر اس شاعری اور خاص طور پر غزل گوئی کی جانب توجہ مبذول رہی۔ اب تک انہوں نے غزلوں کے 2 مجموعے اور شعری مجموعہ ایک، 7 پارہ ہے دل، لخت ہے دل، آپ کی یہ کتابیں مجموعے منظر پر آ چکی ہیں۔ نثری تخلیقات میں کافی تعداد میں تنقیدی مضامین، سفر نامے اور مختصر افسانے شائع کرتے رہے ہیں۔ رضیہ کاظمی ہلکے پھلکے سادہ عام فہم افسانے لکھتی ہیں جن کا خام مواد وہ اپنے آس پاس کی زندگی اور ماحول سے لیتی ہیں۔ وہ افسانے کسی عزم یا کسی تھیوری سے پرے رکھتی ہیں۔ انہوں نے آج تک کسی مدیر سے اپنے افسانوں کی اشاعت کی درخواست نہیں کی، اور نہ ان کے افسانے کسی میگزین میں کبھی پابندی سے چھپے ہیں۔ اگر کسی نے کبھی کسی فورم یا فیس بک سے لے کر شائع بھی کیا تو انہوں نے کبھی اس کا ریکارڈ نہیں رکھا۔ جناب محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ تھی۔ میں کچھ جناب انجینئر سخی سرمد صاحب کے بارے میں بھی کہتا چلوں۔ جناب سخی سرمد گلبرگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا پورا نام سید شاہ فرید الدین سرمست ہے، عرفیت سخی سرمست ہے، اور یہی آپ کا تخلص بھی ہے۔ BE سول ME اسٹرکچر ہیں، اور آپ انجینئرنگ میں PhD کر رہے ہیں۔ آپ کے دادا اور ماموں اپنے دور کے معروف شاعر رہے ہیں، اسی لیے طبیعت میں پیدائشی طور پر شاعری کی طرف طبیعت مائل رہی۔ بچپن سے ہی حمد نعت خوانی کا شرف بھی حاصل رہا ہے آپ کو، اور یہی جذبہ جناب سخی سرمد صاحب کو شاعری کی طرف مائل رکھا ہے۔ حمد نعت منتقبت قطعہ اور غزل کہتے ہیں۔ اپنے مجموعہ کلام کی اشاعت پر کام کر رہے ہیں، اور
جو ہے جلد ہی آپ کا یہ مجموعہ منظر پر آنے والا ہے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد منور علی صاحب۔ جناب محمد منور علی صاحب اپنی طنز و مزاح کے لیے بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ جناب محمد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد منور علی صاحب، حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے طنز و مزاح خاکے اور شاعری کے لیے بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ جناب محمد منور علی کے اپنے الفاظ میں وہ کہتے ہیں، ہوں مختصر مگر میری عادت بری نہیں، شرمندگی کسی سے بھی مل کر ہوئی نہیں، جو ملا ہے وہ میرے قد سے بڑا ملا ہے، اللہ کے فضل سے میری گردن جھکی نہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں اپنے پروگرام یہ پیش کر چکے ہیں اپنے ٹروپس کے ہمراہ، جس میں مشہور و معروف شعراء کرام جناب راحت اندوری صاحب مرحوم اور جناب منظر بھوپالی صاحب اور دوسرے بہت مشہور شعراء بھی شامل رہے ہیں۔ آپ وہاں پر یہ پروگرام پیش کر چکے ہیں اور نظامت بھی کی ہے۔ آپ کے حلقہ احباب میں آپ کے شعراء کرام اور فنکاروں کے احباب میں تمام ہند کے تمام معروف شعراء کرام شامل ہیں، اور یہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے مشہور شاعر جناب میکس نادر صاحب کے پروگرام میں بھی آپ منور علی صاحب نے نظامت کی ہے۔ یہ تھے جناب منور علی عرف مختصر، یہ مختصر آپ کا منور علی صاحب کا جو ہے تخلص ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ اعلان کرتا چلوں کہ اس محفل مشاعرہ کے صدر ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب، اور اس کی نظامت کریں گے جناب اسرار احمد رازی صاحب۔ جناب اسرار رازی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب اسرار رازی احمد صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ نے جیسا کہ بتایا جناب عزیز بلگامی صاحب کے اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، ہم لوگوں کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ تو قاعدے میں جو ہے محفل کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے ہو گیا ہے، تو ایک نعت شریف ہو جائے۔ تو کوئی صاحب ہیں جو نعت شریف لے کے آئے ہیں؟ عزیز بلگامی صاحب کو پڑھنا تھا نعت شریف۔ جی میں انشاءاللہ میں نعت شریف پیش کروں گا۔ اچھا تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے پروگرام میں جو صاحبان شامل ہیں ان تمام کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ رفتار شاعری کے حامل ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی اور تمام شرکائے کرام کا تہہ دل سے بہت خوشی کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے، اور میں اسی کے ساتھ جناب سرمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت میں سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ خدا کے نور کا جلوہ سجا مدینے
خدا کے نور کا جلوہ سجا مدینے میں، میرے حضور ہیں جلوہ نما مدینے میں، سبحان اللہ میرے سبحان اللہ حضور ہیں جلوہ نما مدینے میں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ۔ الہی پھر مجھے جلدی بلا مدینے میں، آمین۔ الہی پھر مجھے جلدی بلا مدینے میں، تیرے رسول سے مجھ کو ملا مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان تیرے اللہ رسول سے مجھ کو ملا مدینے میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ دیکھیے، تڑپ ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچوں، تڑپ ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچوں، خدایا مجھ کو تو پہنچا ذرا مدینے میں، میرے حضور ہیں جلوہ نما مدینے میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ شعر دیکھیے، جو نور دیکھ کے سجدہ کیے ملائک سب، جو نور دیکھ کے سجدہ کیے ملائک سب، دکھا دے پھر وہی رخ کی ضیا مدینے میں، دکھا دے پھر وہی رخ کی ضیا مدینے میں، میرے حضور ہیں جلوہ نما مدینے میں۔ تو جو چاہوں گا شعر پر، درے حضور پہ رمضان میں رہوں مولا، درے حضور پہ رمضان رہوں مولا، تیرے کرم کی بہاریں
دیکھا مدینے میں آمین 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 تیرے کرم کی بہاریں دکھا مدینے. ارے مختہ سماعت فرمائیں. ارشاد علی عطا ہو تھوڑی جگہ بس بقی میں آقا. ارشاد علی عطا ہو تھوڑی جگہ بس بقی میں آقا. عطا ہو تھوڑی جگہ بس بقی میں آقا. رہوں میں حشر تلک با خدا مدینے میں. رہوں میں حشر تلک با خدا مدینے میں. میرے حضور ہیں جلوہ نما مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. مقصد پہ پہنچا ہوں. سقی کو آپ کے فضل و کرم نے گھیر لیا. سقی کو آپ کے فضل و کرم نے گھیر لیا. حضور آپ کا جود و سقا مدینے میں. حضور آپ کا جود و سقا مدینے میں. عطا ہو تھوڑی جگہ بس بقی میں آقا. رہوں میں حشر تلک با خدا مدینے میں. خدا کے نور کا جلوہ سجا مدینے میں. میرے حضور ہیں جلوہ نما مدینے میں. میرے حضور ہیں جلوہ نما مدینے میں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کے خوبصورت سماعتوں کا. سرمد صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت نعت شریف پیش فرمائی. بہت بہت مبارکباد قبول فرمائے. اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ محفل مشاعرہ کے روح رواں اور اس کو بنانے والے، سجانے والے، سنوارنے والے، یہاں تک کہ ہر وقت
मुशायरे की फिक्र और किस तरह लोगों को जोड़ना है, कैसे करना है, इसके लिए मोहम्मद मोहित खान साहब को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उन्हीं की कोशिशों का सिला है कि जो हम लोग सब आपस में जुड़ के बैठे हुए हैं और उर्दू शायरी के हवाले से हम सब जुड़े हुए हैं इस वक्त। और मुशायरे का बाकायदा आगाज हो चुका, तिलावत कलाम पाक और उसके बाद नात शरीफ हो चुकी। अब डॉक्टर बरकी आजमी साहब चूंकि बहुत मसरूफ रहते हैं, उनका आज भी कोई मुशायरा है डॉक्टर साहब? जी, दो मुशायरे और हैं, दो मुशायरे। तो यहाँ पे सदारत भी है आपकी और 2 मुशायरे हैं, फिर कैसे मैनेज करेंगे? मैं कुछ देर रहूंगा, अभी कुछ देर लोग। अच्छा, ठीक है। तो आप जैसे भी मुनासिब समझे बता दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुशायरे हैं तो उनको अटेंड भी करना है, शामिल भी होना है। नहीं शामिल क्या, मुझे बैठने में तकलीफ ज्यादा होती है, इस वजह से मसला जो है। जी मेरे साथ मसला ये है। अब मैं, अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक हम शरीफ में पेश कर दूं। जी हम शरीफ आप भी पेश कीजिए, मैं भी पेश करूंगा जो है, आप पहले पेश कीजिए। ठीक है, आपकी अगर इजाजत हो तो, क्योंकि साहबे सद्र आप हैं, साहबे मसनद आप हैं, आप इजाजत आप मुख्तार हैं, मुख्तार अकुर हैं। बहुत शुक्रिया। नात शरीफ का मतलब, हम्द शरीफ का मतलब मुलाहिजा फरमाएं। मलक फलक है तेरा ही परतौ, चमक दमक में जमाल तेरा। मलक फलक है तेरा ही परतौ, चमक दमक में जमाल तेरा। है खैर व शर पर तेरी ही कुदरत, है बहरो बर में कमाल तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। मलक फलक है तेरा ही परतौ, चमक दमक में जमाल तेरा। है खैर व शर पर तेरी ही कुदरत, है बहरो बर में कमाल तेरा। मुझे अता कर तू चश्म बीना, तू गोशे शुनवा भी दे दे या रब। करूं मैं कैसे तेरा तसव्वुर, नजर में आना मुहाल तेरा। मुझे अता कर तू चश्म बीना, तू गोशे शुनवा भी दे दे या रब। करूं मैं कैसे तेरा तसव्वुर, नजर में आना मुहाल तेरा। और गगन गगन है तेरे ही जलवे, चमन चमन में तेरी ही रंगत। गगन गगन है तेरे ही जलवे, चमन चमन में तेरी ही रंगत। जिहत जिहत है तेरा ही नगमा, जुनूब तेरा शिमाल तेरा। जुनूब तेरा शुमाल तेरा। और नगर नगर है तेरा ही चर्चा, है करिया करिया तेरा ही कलमा। नगर नगर है तेरा ही चर्चा, है करिया करिया तेरा ही कलमा। कलम कलम पर तेरी ही हैबत, अलम अलम है जलाल तेरा। बहुत शुक्रिया। और शजर शजर है तेरा नमाजी, है खौफ तेरा हजर हजर में। शजर शजर है तेरा नमाजी, है खौफ तेरा हजर हजर में। जुबां जुबां पर तेरी सनाएं, बयां बयां में ख्याल तेरा। शजर शजर है तेरा नमाजी, है खौफ तेरा हजर हजर में। ज़बां ज़बां पर तेरी सनाएं, बयां बयां में ख्याल तेरा। मलक फलक है तेरा ही परतौ, चमक दमक में जमाल तेरा। है खैर व शर पर तेरी ही कुदरत, है बहरो बर में कमाल तेरा। है लम्हा लम्हा खता में डूबा, है चप्पा चप्पा गुनह का शाहिद। बचा ले हमको गजब से मौला, न आए हम पर वबाल तेरा। और आखिरी शेर के नफस वक्ते का शेर है कि नफस नफस में तेरी सदा है, जरस जरस में तेरी निदा है। नफस नफस में तेरी सदा है, जरस जरस में तेरी निदा है। करे न तेरी क्यों हमद राजी,
ہے مصر مصرا وصال تیرا، ملک فلک ہے تیرا ہی فضل، چمک دمک میں جمال تیرا، ہے خیر و شر پر تیری ہی قدرت، ہے بحر و بر میں کمال تیرا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب بہت اس حمد کے بعد میں جناب صدر ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی حمد پیش فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بحریہ دور کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ شکریہ نوازش۔ کورونا کی تباہ کاریوں کے تناظر میں ایک مناجات بترکا ہے قاضی الحاجات سے بات فرمائیں۔ ہو گئی ناقابل برداشت یہ کورونا کی مار، ہو گئی ناقابل برداشت یہ کورونا کی مار، لوگ رخصت ہو رہے ہیں اب قطار اندر قطار، لوگ رخصت ہو رہے ہیں اب قطار اندر قطار، رحم فرما اپنے بندوں پر الہ العالمین، رحم فرما اپنے بندوں پر الہ العالمین، ملتجی ہیں تیری رحمت کے سبھی پروردگار، ملتجی ہیں تیری رحمت کے سبھی پروردگار، لرزہ بر اندام ہیں اقوام عالم ہر طرف، لرزہ بر اندام ہیں اقوام عالم ہر طرف، موت کی ہر لحظہ خبریں مل رہی ہیں دل فگار، موت کی ہر لحظہ خبریں مل رہی ہیں دل فگار، اس وبا سے تو ہی دے سکتا ہے ہم سب کو نجات، اس وبا سے تو ہی دے سکتا ہے ہم سب کو نجات، کر رہے ہیں سب تیرے فضل و کرم کا انتظار، کر رہے ہیں سب تیرے فضل و کرم کا انتظار، حشر سے پہلے ہی ایک محشر بپا ہر طرف، حشر سے پہلے ہی ایک محشر بپا ہر طرف، چل بسے اس سے نہ جانے کتنے فخر روزگار، چل بسے اس سے نہ جانے کتنے فخر روزگار، آج مرگ ناگہاں سے ہے سبھی وحشت زدہ، آج مرگ ناگہاں سے ہے سبھی وحشت زدہ، گلشن ہستی کی ہے جس سے خدا دیدہ بہار، گلشن ہستی کی ہے جس سے خدا دیدہ بہار، قبضہ قدرت سے باہر کچھ نہیں یارب تیرے، قبضہ قدرت سے باہر کچھ نہیں یارب تیرے، سن لے برقی آدمی کے قلب مستر کی پکار، سن لے برقی آدمی کے قلب مستر کی پکار، ہو گئی ناقابل برداشت یہ کورونا کی مار، لوگ رخصت ہو رہے ہیں اب قطار اندر قطار۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ، بہت خوب۔ اور ایک بار میں پھر تمام حاضرین کا بطور خاص ہمارے اس مشاعرے میں شامل دہلی کے سینئر شاعر جناب ساز دہلوی صاحب اور سینئر شاعرہ محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ، نگار بانو صاحبہ، اور ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی جو کہ محفل مسلط صدارت پہ سرفراز ہیں، اور ایک نام محمد معین خان صاحب، ایک نام یہ نہیں آ رہا ہے، یہ ٹوٹیا کلاس 01 آ رہا ہے، یہ تعارف فرمائیں۔ اذان ہو گئی ہے یا نہیں، اذان کی آواز نہیں ہے، کھڑکھڑاہٹ کی آواز۔ کسی کے مائک میں مجھے دے دو، گزیٹڈ بن کے بھی میں مختصر دولت کمایا ہوں، تمہاری جیب میں جو کچھ ہے سمدانی مجھے دے دو، میاں بھائی سوٹ پہنو تم یہ شیروانی مجھے دے دو۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ خوشیاں واہ، مجھے دے دو۔ بہت بہت شکریہ، کیا بات، میں آپ سب کیا کو بات، دل کی گہرائیوں سے اور تمام حیدرآباد کے طنز و مزاح کے شعراء کی طرف سے، ادیبوں کی طرف سے میں جناب معیز خان صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ شکریہ کہ آپ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے کا موقع دیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی بہترین، بہت شاندار، لاجواب، عمدہ کلام پیش فرمایا، طنز و مزاح سے بھرپور، اور ہماری سماعتیں بے حد محدود ہیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ضرور آپ سے سنیں گے اگلے مشاعرے میں
जब भी उसका इंशाल्लाह, मोहम्मद मोहित इंशाल्लाह, खान साहब जरूर। उसका एहतमाम फरमाएंगे तो दोबारा फिर सुनेंगे। आप बहुत अच्छा आपने सुनाया, माशाअल्लाह, बहुत मुबारकबाद। अब चूंकि बहारिया दौर का बाकायदा आगाज हो चुका है, हमारे दिल्ली के अलबेले शायर जनाब साज दहलवी साहब भी माशाअल्लाह हमारी बज़्म में शामिल हैं, और इधर जनाब जफर अकबर साहब, जनाब तारिक मुनीर साहब, और सीनियर शायरा रजिया काजमी साहिबा, निगार बानो साहिबा, सखी सरमद साहब, और खाकसार असरार राजी। और मैं एक बार फिर तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ, और अगर किसी साहब को कहीं जाना है तो वो बिला तकल्लुफ अर्ज कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, जैसा कि आमतौर पे मुशायरों में होता है कि जनाब एक तरतीब होती है कि पहले वो पढ़ेंगे फिर वो पढ़ेंगे दर्जा बदर्जा। ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे और सखी सरमद साहब को दूसरे मुशायरे में भी जाना होगा, तो कम से कम आधे घंटे बाद बुला दीजिएगा। तो ठीक है, मैं जनाब नहायत अदब व एहतराम के साथ जनाब सखी सरमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से नवाजें, और उसके बाद डॉक्टर साहब आप तैयार रहिए, फिर मैं इंशाल्लाह हम लोग आपका कलाम सुनेंगे। मैं फिलहाल बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं जनाब सखी सरमद साहब से, वह आए और हाजरीन को अपने कलाम से महजूज करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गजल का मतला समाज फरमाएं। जब ख्वाब हो गए हैं वो दिन वस्ले यार के, सब ख्वाब हो गए हैं वो दिन वस्ले यार के, सब ख्वाब हो गए हैं वो दिन वस्ले यार के, कितने हसीन दिन थे वो खौलो खरार के, कितने हसीन दिन थे वो खौलो खरार के। बहुत शुक्रिया। उसने मतलब समाज फरमाए। अब हिज्र में रहेंगे वो यादें संवार के, अब हिज्र में रहेंगे वो यादें संवार के, आए हैं फिर से लौट के दिन इंतजार के, आए हैं फिर से लौट के दिन इंतजार के। बहुत शुक्रिया। इसे देखिए, बरबो शजर भी लगते हैं मुँह खारजार के, बरबो शजर भी लगते हैं मुँह खारजार के, ऐ अंदलीब तेरे गए दिन बहार के, अंदलीब तेरे गए दिन बहार के। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर देखिए, अपने ही मन की बात सुना कर वो मस्त हैं, अपने ही मन की बात, अपने ही मन की बात सुना कर वो मस्त हैं, जाने सुनेंगे कब वो गिले हाल जार के, जाने सुनेंगे कब वो गिले हाल जार के। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। इसे देखिए,
اجڑا چمن یہ دیکھ کے رویا ہے آسمان، اجڑا چمن یہ دیکھ کے رویا ہے آسمان، بلبل بھی گیت بھول گئی ہے وہ پیار کے، بلبل بھی گیت بھول گئی ہے وہ پیار کے، اجڑا چمن یہ دیکھ کے رویا ہے آسمان، اجڑا چمن یہ دیکھ کے رویا ہے آسمان، اجڑا چمن یہ دیکھ کے رویا ہے آسمان، بلبل بھی گیت بھول گئی ہے وہ پیار کے، بہت بھول گئی ہے گیت کو بہت، بلبل بھی گیت بھول گئی ہے، بہت شکریہ۔ دیکھو فلک بھی کیسے جھکا ہے زمین پر، دیکھو فلک بھی کیسے جھکا ہے زمین پر، سارے شہید ہو گئے جب کارزار کے، سارے شہید ہو گئے جب کیا غزل سن رہے ہیں بھائی، بہت بہت شکریہ، مقتے کی زحمت۔ خوشیوں میں آج مست ہیں دنیا کے لوگ سب، خوشیوں میں آج مست ہیں دنیا کے لوگ سب، دکھڑے سنے گا کون سخی بے قرار کے، دکھڑے سنے گا کون سخی، وقت بھی استعمال کر لیا آپ نے، بہت عمدہ۔ جی بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ خوشیوں میں آج مست ہیں دنیا کے لوگ سب، خوشیوں میں آج مست ہیں دنیا کے لوگ سب، دکھڑے سنے گا کون سخی بے قرار کے، سب خواب ہو گئے ہیں وہ دن وصل یار کے، کتنے حسین دن تھے وہ خولو قرار کے، بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا، بہت عمدہ ماشاء اللہ۔ آپ نے پہلا تاخیر جناب ڈاکٹر احمد علی برقی آزمی صاحب صدر مشاعرہ کو دعوت کلام پیش کرتا ہوں، وہ آئے اور اپنے حسین کلام سے ہم سب کی سماعتوں کو محظوظ فرمائے۔ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر احمد علی برقی آزمی۔ مجھے یہ انمیوٹ کر دیں صاحب، انمیوٹ کر دیں، سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ جی اب اسرار صاحب آپ کا مائک آف ہے، میوٹ ہے، رائٹ، اب بولیے آپ۔ جناب صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر برقی آزمی صاحب کو دعوت کلام پیش کرتا ہوں، وہ آئے اور ہماری سماعتوں کو اپنے حسین کلام سے محظوظ فرمائے۔
जनाब डॉक्टर अहमद अली बरकी आजमी साहब। इरशाद इरशाद समाज फरमाएं। मुंतजिर हैं हम लोग। मैंने दो गजलें लिखी हैं, लेकिन ये यकजा एक साथ पढ़ूंगा उसको। इरशाद अली। सब राजमा बहुत हैं ये दिन इंतजार के, वाह। सब राजमा बहुत हैं ये दिन इंतजार के, मिसले खदा हैं झोंके नसीमे बहार के, मिसले खदा हैं झोंके नसीमे बहार के, नागुफ्ता बे हैं उसके सितम बार बार के, नागुफ्ता बे हैं उसके सितम बार बार के, क्या माजरे सुनाए दिले बेकरार के, क्या माजरे सुनाए दिले बेकरार के, फसले खदा है उनके ताक़ुब में इसलिए, फसले खदा है उनके ताक़ुब में इसलिए, है तितलियों के हाथ में परचम बहार के, तितलियों के हाथ में परचम बहार के, फसले खदा है उनके ताक़ुब में इसलिए, है तितलियों के हाथ में परचम बहार के, दामन दरीदा आज है मुर्गान खुशनवा, दामन दरीदा आज है मुर्गान खुशनवा, गुलशन में अपने गुंचो गुल को संवार के, गुलशन में अपने गुंचो गुल को संवार के, अपने ही मन की बात, अपने ही मन की सबको सुनाते हैं बात जो, अपने ही मन की सबको सुनाते हैं बात जो, किससे सुनेंगे कब वो मेरे हालेदार के, कब सुनेंगे मेरे हालेदार के, अपने ही मन की सबको सुनाते हैं बात जो, किससे सुनेंगे कब वो मेरे हालेदार के, अपने मुहासिबे का करें वो भी इंतजार, अपने मुहासिबे का करें वो भी इंतजार, खुश हो रहे हैं जो हमें नावक्त मार के, खुश हो रहे हैं जो हमें नावक्त मार के, मेरा वजूद जिनके लिए था वबाल जां, मेरा वजूद जिनके लिए था वबाल जां, करते हैं तवाफ वो लोहे मदार के, करते हैं तवाफ वो लोहे मदार के, उनके खराम नाज के मुश्ताक है तभी, उनके खराम नाज के मुश्ताक है तभी, वो जिस तरफ भी जाते हैं जुल्फे सवार के, वो जिस तरफ भी उनके खराम नाज के मुश्ताक है तभी, वो जिस तरफ भी जाते हैं जुल्फे सवार के, हरकत से अपनी बात ना आएंगे वो कभी, हरकत से अपनी बात ना आएंगे वो कभी, देखे हैं उनके साथ कई दिन गुजार के, उनके साथ कई दिन गुजार के, कायम रहा न वादों का उनके कोई भरम, कायम रहा न वादों का उनके कोई भरम, इससे ख्याल खाम है कौलो करार के, इससे ख्यालो खाम है कौलो करार के, रंग बू का ये कैसा निजाम है, दुनियाए रंग बू का ये कैसा निजाम है, गुल साथ साथ रहते हैं हर वक्त खार के, बहुत अच्छा बहुत हर वक्त खार के, ज़हनी सुकून किसी को मैसर नहीं है आज, ज़हनी सुकून किसी को मैसर नहीं है आज, हमारे सभी हैं गर्दिशे लैलो नहार के, सभी हैं गर्दिशे लैलो नहार के, किसी को शुक्रिया, ज़हनी सुकून किसी को मैसर नहीं है आज, हमारे सभी हैं गर्दिशे लैलो नहार के, चाहे मश्क सितम इस पे कर ले वो, चाहे जितनी मश्क सितम इस पे कर ले वो, बरकी को तजुर्बे हैं गमे रोजगार के, बरकी को चाहे जितनी मश्क सितम इस पे कर ले वो, बरकी को तजुर्बे हैं गमे रोजगार के, सब राजमा बहुत हैं ये दिन इंतजार के, मिसले खदा हैं झोंके नसीमे बहार के, नागुफ्तबे हैं उसके सितम बार बार के, क्या माजरे सुनाए बहुत ही उम्दा कलाम पेश फरमाया सदर महफिल ने, माशाल्लाह लाजवाब, बहुत खूबसूरत। अब जब बुजुर्ग लोग पहले सुना रहे हैं तो अब बुजुर्गों में
हमारे ताज साहब भी हैं और रजिया काजमी साहिबा भी हैं। तो साहब भी जवान है भाई। साहब हाँ, कहाँ बदल बराली में जवान है। बुजुर्ग कहने पे मुझे बहुत मारते हैं, मेरी पिटाई शुरू कर देते हैं बुजुर्ग कहने पे, लेकिन है सीनियर शोरा में है, तो इसलिए इस हवाले से हम कह देते हैं। जी। तो बहुत एहतराम के साथ मोहतरमा रजिया काजमी साहिबा को मैं दावत सुखन देता हूँ। और आज ये पहली बार है जब मैं बिलमुशाफा उनसे उनका कलाम सुनूंगा। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और आज मेरे लिए बाइस से फख्र बात है कि पहली बार जो है टेलीफोनियात मुझसे है और बहुत अरसे से, हालांकि और इसके लिए हम जनाब मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो जोड़ के लाए उन्हें यहाँ तक महफिल में लेके आए, उन्होंने जोड़ा, उन्हें मजबूत किया। करम हम लोग उनके मैं मशहूर हूँ मोहतरमा रज़ा काज़मी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो इस महफिल मुशायरा से काफी अरसे से जुड़ी हूँ, लेकिन बस कभी कभी ऑनलाइन कह देती थी अशार, लेकिन अभी ज्यादा मैं महफिल वाली मुशायरा नहीं हूँ, मुशायरों में ज्यादा शिरकत नहीं करती हूँ। इधर कुछ ऑनलाइन किए हैं, पहले मैं अक्सर जाती थी न्यूयॉर्क, लेकिन अब बिल्कुल जाना छोड़ दिया है, तो बस सिर्फ महदूद होकर रह गई हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो हमको ये इज्जत बख्शी। और इंशाल्लाह गजल जो हुई है मुझको तो ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन उम्मीद है अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो बहुत शुक्रिया। तो ये गजल पेश खिदमत है। और वैसे गालिब के जमीन में शेर कहना भी काफी जुर्रत आजमा है। तो लीजिए फिर आप लोगों की सदर साहब की इजाजत हो। और आज हमें बहुत खुशी लगी कि मैं ऐसे बरकी साहब से बहुत करीब हूँ और उनकी ज़ूदगोई की कायल हूँ, और वो हमारे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा। हाँ, तो और हर एक को के लिए, नए शायरों के लिए तो वो इंस्पिरेशन है वाकई। तो ये हमारी ऐन खुशनसीबी है कि उनकी सदारत भी मुयस्सर हो गई। तो चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। मतला अर्ज है, चश्मा भी लगा लेंगे तो। अब दूसरों से राह तरक्की में हार के, अब दूसरों से राह तरक्की में हार के हम पीटते हैं ढोल गए इक़्तिदार के, हम पीटते हैं ढोल गए इक़्तिदार के। आ अंदलीब उसने मतलब है, और गिरा का शेर है, ऐ अंदलीब चल कि चले दिन बहार के, ऐ अंदलीब चल कि चले दिन बहार के, आ एक साथ काट लें दिन इंतजार के, आ एक साथ काट लें दिन इंतजार के। रद्दो बदल भी अम्र इलाही है दोस्तों, रद्दो बदल भी अम्र इलाही है दोस्तों। ढूंढो न रंग दौर ख़ज़ा में बहार, ढूंढो न रंग दौर ख़ज़ा में बहार। जज्बे दिली का उसके अहाता न हो सका, जज्बे दिली का उसके अहाता न हो सका। देखे वो सुबह नौ जो शबे गम गुजार के, देखे वो सुबह नौ जो शबे गम गुजार के। वाकई महसूस कीजिए, तो अहाता करना ये पर्सनल चीज होती है किसी का,
बहुत मुश्किल है कि कोई दूसरा अहाता कर सके। बेशक बेशक बेशक। हाँ, बेशक बेशक। तो जज्बे दिली का उसके अहाता न हो सका, देखे वो सुबह नौ जो शबे गम गुजार के। वाह हर उस तलब को ख्वाहिश बेजा समझ दिला, हर उस समझ को ख्वाहिश बेजा समझ दिला, है वो परे जो दायरे अख्तियार के। क्या है वो वाह, वाह। परे जो दायरे दायरे अख्तियार के। कांटों से होशियार कि दामन न थाम ले, कांटों वाह। से होशियार कि दामन न थाम ले। क्या गुजरो ताबीर है। कांटों से होशियार कि दामन न थाम ले, गुजरो जो दरमिया से किसी खारजार के। जी वाह गुजरो वाह, जो दरमिया से किसी ये खारजार खासदार के। के वाह वाह। कांटों बहुत से उम्दा, होशियार लाजवाब। कि दामन न थाम लें, जी गुजरो जो दरमिया से किसी खारदार के। बहुत एक खूब। एक जहद मुस्तकिल है जरूरी कमाल को, एक वाह। जहद मुस्तकिल है जरूरी कमाल को। मद्दे नजर रहा ये हर एक शहसवार के। क्या अरे वाह। क्या बात। मद्दे वाह। नजर रहा हाँ, ये हर एक शहसवार वाह। के। बहुत खूब। मक्ता अर्ज है, वर्षे में शायरी वो रजिया अता हुई, वर्षे में शायरी वो रजिया हुई अता, मुझको रवायतों से सजा कर संवार के। क्या मुझको हाँ, रवायतों से सजा कर संवार के। तो बहुत ही उम्दा, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। बहुत मरस्सा बस- कलाम से बाहर रखते खुश हो गए। क्या कहने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका खुशी और दोबारा समाज के लिए। मरस्सा कलाम और उसके बाद फिर जो है आपसे शरफ न्याज। और नहीं, आपने तो पहले भी हमारे दीवान के ऊपर भी कहा था, हमको याद है हमारे वालिद साहब का हमने पेश किया था, तो उसमें भी हमने नोट करके सेव करके रखा हुआ है। माशाल्लाह। तो और सबसे बढ़ के कि आप जो हमारे लिए सोर्स हैं इंस्पिरेशन का, ये बहुत खुशी की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और निगार साहब से भी मुलाकात हुई, और साथ साहब अक्सर मुशायरे में ऑनलाइन मुलाकात होती है, लेकिन ये दो बदू नहीं, तो आप सब लोगों से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और ये महफिल मुशायरा का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिसने मुझको ये मौका अता किया। शुक्रिया, आप तशरीफ हाँ। लाए। लोगों को भी बहुत खुशी हुई। अपना व्हाट्सएप नंबर आता कर दीजिएगा। अपने चलो राब्ते में होगा व्हाट्सएप आप नंबर। तशरीफ लाए, इसके लिए हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाद में सदर साहब की इजाजत मुझे पढ़ा दीजिए, आपके होते मैं पढ़ लूं। नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, हम भी सुन। साथ दहली साथ। अब दिल्ली से हमारी बज़्म में शरीक, हमारे साथ शामिल हाल इस महफिल मुशायरा में मोहतरमा निगार बानो साहिबा अपना कलाम पेश करना चाहती हैं। मैं तखल्लुस नाज़ है इनका, निगार बानो नाज़ साहिबा, मैं सदर साहब की इजाजत से मोहतरमा निगार बानो साहिबा नाज से बहुत अदब व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि वह आए और हाजिरीन को अपने कलाम से महजूज फरमाएं। जी, मैं हाजिर होती हूँ सदर साहब की इजाजत, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप जैसे लोगों के सामने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपकी बेहद ममनून और मशकूर हूँ। बल्कि सर का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में शामिल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों को मेरा मुअद्दबाना सलाम अर्ज है। मैंने कोशिश की है, मैं इतनी मारूफ शायरा नहीं हूँ। देखिए, आप लोगों को पसंद आए तो जरूर दाद दीजिएगा।
इरशाद इरशाद। यूं है कि सब लुट गए हैं कारवां सब्रो करार के, वाह सब लुट गए हैं कारवां सब्रो करार के, ऐ वाह। अंदलीब चल के चले दिन बहार के, क्या ऐ अंदलीब चल के चले दिन चल के बहार चले। के। बहुत उम्दा, हम बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर यूं है कि हम जोलियों के जहन में उरियानियां न थी, हम जोलियों के जहन में उरियानियां न थी, दरिया पे सब ने रख दिए कपड़े उतार के, दरिया पे सब ने रख दिए कपड़े उतार के। बहुत उम्दा, बहुत खूब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर यूं है कि जंजीर इश्क जिस्म से आकर लिपट गई, जंजीर इश्क जिस्म से आकर लिपट गई, हम आ रहे थे वक्त की जुल्फे सवार की, हम आ रहे थे वक्त की जुल्फे सवार की। बहुत क्या जी, बहुत शुक्रिया। उसका ख्याल ये था अंधेरे सिमट गए, उसका ख्याल ये था अंधेरे सिमट गए, हम मुतमईन नहीं थे शबे गम गुजार की, हम मुतमईन नहीं थे शबे गम गुजार की। और तेरा ख्याल धूप की शिद्दत में खो गया, तेरा ख्याल तेरा ख्याल धूप की शिद्दत में खो गया, देखा था हमने ख्वाब में तुझको पुकार की, वाह, देखा था हमने ख्वाब में तुझको पुकार की, और रिश्तों से एतबार की लज्जत भी जा चुकी, रिश्तों से एतबार की लज्जत भी जा चुकी, ऐसे करम हुए हैं गमे रोजगार की, गमे रोजगार के। बहुत उम्दा मक्ता है। समाज फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। मक्ता समाज फरमाए कि ऐ नाज यूं ही वक्त के सहरा में खो गए, ऐ नाज यूं ही वक्त के सहरा में खो गए, शहरे वफा से आए थे बाजी को हार के, शहरे वफा से आए थे बाजी को हार के, सब लुट गए हैं कारवां सब्रो करार की, ऐ अंदलीब चल के चले दिन बहार। बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश। ये निगार बानो साहबा की उस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें यूं तो गालिब की जमीन में कहा है, मगर इसमें नवाब शेफ्ता का भी कुछ अंदाज है, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। नवाब शेफ्ता की भी कुछ झलक आई इसमें। जी जी बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जज़ाकल्लाह। अब बख्शी साहब का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने लाकर इस मकाम तक आप तक पहुंचाया, आप तक रसाई हुई हमारी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ लाएं, हम सभी महसूस हुए आपके कलाम से, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आप आगे भी तशरीफ लाती रहें। और मैं अब जनाब हमारे करम फरमा जनाब तारिक मुनीर साहब जो अभी अपने ख्यालात का इजहार भी फरमा रहे थे, मैं उनसे बहुत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं कि वो आए और हाज़रीन महफिल को अपने कलाम से नवाजें। जनाब तारिक मुनीर साहब। हाँ, माइक इनसे असद हम, या मोइस साहब जो है ये हमारे छोटे भाई की तरह आए, इनको हम असद कहते हैं, इनका घर का नाम असद है। तो इनसे मैंने अर्ज किया था कि भाई मैंने आज नहीं पढ़ना है, मगर आप इतना ऐसा करें तो मुझे टाइम दे के मैं जल्दी से मैं एक मिनट का एक चीज पेश कर दूंगा, मगर अगले शायर के बाद, ताकि मैं उतनी देर में अपना निकाल लूं मैं फोन पर। अच्छा, अपने साहब को बुला लें। हाँ, मैं यही बुलाना चाह रहा था, लेकिन उनके माइक में कुछ कमी आ रही है, तो कैसे वो होगा? साहब देखिए, आप कीजिए। मेरा ये निकल आया है, मैं पढ़ देता हूँ। अभी मैं इजाजत हो तो मैं 1 मिनट में अपना पेश कर दूं, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था। तो मैंने देखिए, चूंकि गालिब के इसमें जमीन में चल रहा है, या पिछली 2 शायरा हजरात ने बहुत उम्दा पेश किया है, वाकई में बहुत अच्छा था कलाम दोनों का। तो मैंने भी गालिब के दिले नादा के जमीन में एक पैरोडी यानी एक मज़ाहिया नज़म लिखी है। बहुत खूब। हाँ, और ये नज़म बहुत ही मॉडर्न है, क्योंकि ये फोन के ऊपर है, स्मार्टफोन पर इसका टाइटल है, स्मार्टफोन। हाँ, तो ये स्मार्टफोन जो है, इसने पिछला जो फोन था उसको बिठा दिया है। सही।
पिछला जो फोन था उसको आप कह लें कि आम फोन या डम फोन, जैसे आप क्या कह लें, तो मैं अब जल्दी से पेश करता हूँ। तो ये इस तरह है कि जो पुराना फोन था उसको मैं, ये चूंकि नया फोन स्मार्टफोन है तो पिछले फोन को मैं नादान फोन कह रहा हूँ, नादान है वो फोन। तो फोन ने नादान तुझे हुआ क्या है, फोन ने नादान तुझे हुआ क्या है, नादान तुझे हुआ क्या है, क्या बात है, खौफ स्मार्टफोन से तू छुपा कहाँ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, अर्ज है टेक्स्ट मैसेज से हैं वो बेजार, टेक्स्ट मैसेज से हैं वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। वाह, मैसेज से हैं वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। क्या बात। मैं भी कीबोर्ड पर उबूर रखता हूँ, कीबोर्ड पर उबूर रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। क्या बात, क्या बात। है दिन रात रिंगटोन की ललकार, रिंगटोन की ललकार, ये हंगामा खुदा क्या है। खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, फेसबुक पर हसीनों का जमघटा क्या है। वाह वाह वाह, वॉइस मैसेज भेज तेरा भला होगा, वॉइस मैसेज भेज तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। हमको उनसे मैसेज की है उम्मीद, हमको उनसे मैसेज की उम्मीद, जो नहीं जानते कीबोर्ड क्या है। वाह वाह वाह, मैसेज की है उम्मीद, कीबोर्ड क्या जो है, नहीं जानते कीबोर्ड क्या है। वाह, गूगल से तुमको सर्च करता हूँ, गूगल से तुमको सर्च करता हूँ, मैं नहीं जानता तेरा पता क्या है। वाह वाह वाह। और साहब मख्तार है कि बर्बादी वक्त है मुकम्मिल, बर्बादी वक्त है मुकम्मिल व्हाट्सएप, बेशक, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अच्छा अच्छा, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। बहुत खूब, मेरी पेशकश खत्म हुई। जी जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब तारिक मुनीर साहब ने बेहद मज़ाहिया कलाम पेश किया, खास तौर पे फोने नादा तुझे हुआ क्या, ये फोने नादा वाले खुद अपने आप में बहुत मजा दे रही है, बहुत खूब। और आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जनाब साज दहलवी साहब से बहुत अदब व एहतराम के साथ, जो हमारे दिल्ली के सीनियर शोरा में हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन शायरी करते हैं। मैं आजकल ऑनलाइन प्रोग्रामों में, ऑनलाइन ये जो हफ्तावारी मुशायरे या माहाना मुशायरे होते हैं, इसमें भी बराबर ये शरीक रहते हैं। मैं जनाब साज दहलवी साहब से बहुत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वह आए और हाजिरीन को अपने कलाम बलागत निज़ाम से महजूज फरमाएं। हम लोग गोश पर आवाज है। खुशामदीद साहब। अब आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप वो केबल फोन से निकाल दीजिए, आपकी आवाज साफ आएगी। हाँ हाँ जी, अब आवाज आप पढ़िए, आप आवाज आना चाहिए, बुलंद आवाज पढ़िए। शायद हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा है साहब। नहीं, स्टिल हो गया, कैमरा स्टिल हो गया उनका, शायद नेटवर्क का कुछ मसला है। हाँ अब आ गया साहब, आप आवाज से एक शेर पढ़िए, कम से कम मालूम तो हो जाए आवाज। कहाँ चले गए साहब भाई? मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि उनका फोन जो है वो फोन नादान तो नहीं है। जी सही, टेक्निकल प्रॉब्लम है गालिबन। जी टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो फोन नादान की तरफ जा रहा है। हाँ, फोन नादान तुझे हुआ क्या है। सही है, बहुत सही।
साज है, आवाज नहीं है। साज साथ भाई आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में हेडफोन में आवाज आ रही है। मेरे ख्याल में आप दूसरे शायर को बुला ले, उतनी देर में वो प्रैक्टिस कर लेंगे। आप दूसरे शायर को बुला आवाज ले। नहीं आ रही है आपको? जी तो क्योंकि ताज साहब की आवाज नहीं आ पा रही है, जब तक वो अपना फिक्स करते हैं, इस दौरान मैं जनाब जफर अकबर साहब जो हमारे बड़े मुखलिस, बड़े करम फरमा हैं, उनसे मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने कलाम से महफिल को सरफराज फरमाएं, महफिल को महजूज फरमाएं। जनाब जफर अकबर साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सब सामईन को नवाजें। असरार साहब जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ी सी आपसे चूक हो गई, मैं शायर नहीं हूँ, मैं सामईन की महफिल में बैठा हूँ। मेरा काम सिर्फ सुनना है, सराहना है सबको। मैं शायरी नहीं करता, बहुत कम करता हूँ, और फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा मौजू नहीं है जिस पे मैं बोल सकूँ। ख़ास तौर से इतने सीनियर शोरा जैसे डॉक्टर साहब हैं, साद साहब हैं, रज़िया साहिबा हैं, निगार साहिबा हैं, और हमारे इंजीनियर साहब सखी साहब हैं, इन सब के सामने मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं अपना मुंह खोलूं। तो आप लोग महफिल को अब इसी तरह से जारी रखने दें, महफिल को बदमज़गी से बचाएं, मतलब अगले शायर की तरफ रुजू करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कहा है, लास्ट गुज़िश्ता मुशायरों में आपने कहा है सब पता। माशा जी जी जी। तो अब हमारी महफिल के रूहे रमा जो हैं जनाब मोहम्मद मुइज़ खान साहब, मैं अब उनकी तरफ रुख करता हूं, क्योंकि साद साहब अभी अपना वो फिक्स कर रहे हैं। जैसे ही उनकी आवाज आएगी हम उनकी तरफ रुजू करेंगे। फिलहाल मैं महफिल मुशायरा के रूहे रमा कन्वीनर, मुशायरे के कन्वीनर और महफिल मुशायरा के मुदीर जनाब मोहम्मद मुइज़ खान साहब को बड़े अदब व एहतराम के साथ, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनको मैं दावत सुखन देता हूँ, वह आए और सामीन को अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब। मैं जदीद शुरा में मेरा शुमार होता है, जो अभी सीख रहे हैं। मैं बरकी साहब से, और मुझे शायरी सीखने में जो मावन रहे हैं डॉक्टर बरकी साहब और हमारे अजीब इल्गामी साहब, हमारे असरार साहब का बड़ा ताउन रहा है। हमारे असरार साहब के उस्ताद उस्मान चांदपुरी साहब का, अब्दुल अजीज यास चांदपुरी साहब का बड़ा है। तो कुछ अशार कहने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। पहले मैं आपको एक खता सुनाना चाहता हूँ, जो आवाज जो पहुंच नहीं रही है। चेहरा आपको सामने होना चाहिए। जी जी, कहीं और देख रहे हैं आप? जी ये इसका कैमरा पता नहीं किस तरह सेट हुआ है, अब रहने दे, मैं ख्याल से नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। तो अर्ज किया है, इजाजत है सर साहब। इरशाद आली जी। कौन जाने किस सदा की गूंजी थी बाज़गश्त, कौन जाने किस सदा की गूंजी थी बाज़गश्त, इस तरफ तो दूर तक खामोशियों का राज है। एक सदा आई थी और जाने कहाँ खो भी गई, या कभी जागी न थी दुनिया या फिर से सो गई। जी जी। अब ये तरह पे कोशिश किया मैंने। इरशाद आली। आबाद जिसमें गुल थे जहाँ नौ बहार के, किस हाल में है क्या कहें मौसम बहार के। वाह। खुशबुए गुल फिजाए चमन सब निसार के। अरे मेरी आवाज आ गई भाई अब। हेलो म्यूट। जी अभी बुलाते हैं आपको। म्यूट हो गया है जनाब मोहम्मद मुइज़ खान साहब, आपका म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट हो गया है कहाँ? नहीं अनम्यूट हो गया। मोहित भाई म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर दिया। मोहित भाई के पास दो हैं, एक कैमरे से आवाज आ रही है, दूसरी से पिक्चर।
दूसरी से आवाज आपके मुझसे आपके बड़ा साहब लेफ्ट मैं पा- बिल्कुल आप आ रहा है। वो उसमें जो आपके लेफ्ट पे जो कैमरा है उसमें तस्वीर आ रही है और आपके सामने वाले जो कैमरे से आवाज आ रही है। हाँ, जिसमें तस्वीर आ रही है उसमें गड़बड़ है, इसलिए नहीं मुझे पता, दूसरा मैं नहीं कैमरा जानता ये सब। मैं जारी रखूं? जी बुला रहे हैं आपको साथ भाई। जारी रखूं? साथ भाई मुझे बुला आवाज आ रही है आप लोगों की। हाँ साथ भाई बुला हाँ लीजिए साहब, अपने। शाह साहब की आवाज आ गई, माशाल्लाह, आ गया। बहुत हाँ। मुबारक हो। मैं मुकम्मल करूंगे। आप तब तक दुरुस्त कीजिए ना सिस्टम के साथ भाई की आवाज। हाँ, तो जनाब मोहम्मद मोहित खान साहब, आप अपना कलाम मुकम्मल करें। जी। आबाद जिसमें गुल थे जहाँ नौ बहार की, किस हाल में है क्या कहें मौसम बहार की, खुश वाह गुल फिजाए चमन सब निसार की, सब रंग वाह जमा हो गए गुलजार की, रंगत की उड़ चुकी है गुले लाल जार की, पोशाकें हो गई जुदा दिल से चनार की, अब कुछ नहीं चमन में मजुस ख्वाब तो खार की, ऐ अंदली चल के चले दिन बहार की। वाह 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 विर्द वाह, जुबां, वाह वाह। ये शेर जरा अलग से हो गया है। विर्द जुबां है आज भी जो खास व आम के, विर्द जुबां है आज भी जो खास व आम के, असबर है मुझको शेर वो सारे खुमार के। वाह 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 वाह। कहते हैं शायरी हो तो कैसे हो कहते हैं शायरी हो तो कैसे भला मुईस, कहते हैं शायरी हो तो कैसे भला मुईस, ऐ काश गम न होते कभी रोजगार के। हाँ हाँ वाह वाह वाह। बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, वाह वाह। आपने सुनाया। अब साथ साहब को दावत कलाम देने से पहले मैं एक मतला पेश कर दूं ताकि मेरी भी शिरकत हो जाए महफिल में। ऐसा साथ भाई सुन लीजिए, इससे पहले डिस्टर्ब हो जाए। मुझे सिर्फ एक मतला सुनाना है, बस ये रस्मी शिरकत। मैं तो कलाम अपना सुना चुका हूँ, तो एक शेर मेरा सुन लीजिए कि शानों से अपने बारे गिरा हम उतार के, शानों से अपने बारे गिरा हम उतार के, कांधों पे दस्तों पाक को चले हैं पसार के। शानों से अपने बारे गिरा हम उतार के, कांधों पे दस्तों पाक को चले हैं पसार के। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अब मैं जनाब साज दहलवी साहब की खिदमत में आता हूँ और बहुत अदब व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह आए और अपने कलाम से महफिल को महजूज फरमाएं। तमाम हजरात बहुत देर से आपको सुनने के लिए मुश्ताक हैं, आप अपने कलाम से हम सबको नवाजें। हुजूर, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा, कोई गलती हो जाए तो माफ फरमा दीजिएगा। इरशादे आली, इरशादे आली। तो माइकी जल्दी क्या अर्ज करता हूँ। इरशाद। बात दिल के आगे आए हैं पगड़ी उतार के, बात दिल के आगे आए हैं पगड़ी उतार के, बैठे हैं आज शेख जी दामन पसार के, वाह 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 वाह। बैठे हैं आज शेख जी दामन पसार के, और लश्कर बुला के लाया है कौवों का बागबान, लश्कर बुला के लाया है कौवों का, लाया है जागों का बागबान, है तायरान बाग गए दिन बहार के, तायरान बाग गए दिन बहार के, हद हो गई है खून में आया नहीं उबाल, हद हो गई है
خون میں آیا نہیں ابال کب تک جیو گے اپنی ضرورت کو مار کے جیو گے اپنی ضرورت کو مار کے اور مشکل بہت ہے جیتنا اہل خرد سے جنگ کیا بات مشکل بہت ہے جیتنا اہل خرد سے جنگ ہتھیار کام آتے نہیں ان دھار کے ہتھیار کام آتے نہیں ان دھار کے اور سوئے کہاں ہے اہل وطن اب تو کچھ کرو سوئے کہاں ہے اہل وطن اب تو کچھ کرو اٹھنے لگے نگر میں ہیول شرار کے اٹھنے لگے نگر میں ہیول شرار کے اور آ کر پڑے ہیں راہ میں کس قافلے کے پاؤں آ کر پڑے ہیں راہ میں کس قافلے کے پاؤں بادل اٹھے ہیں چار سو گرد و غبار کے بادل اٹھے ہیں چار سو گرد و غبار کے اور مرد زمان کا کرتے ہیں صدیوں سے انتظار مرد زمان کرتے ہیں صدیوں سے انتظار رکھ دے جو مردہ قوم کی حالت سدھار کے رکھ دے مردہ قوم کی حالت سدھار کے اور صد شکر آبلوں سے ملی پاؤں کو نجات صد شکر آبلوں سے ملی پاؤں کو نجات صدقے ہزار جائیے اس خار دار کے ہزار جائیے اس خار دار کے بہت عمدہ اور ہو کارواں کا میر وہ ہو کارواں کا میر وہ منزل کریں سلام ہو کارواں کا میر وہ منزل کریں سلام پھرتے ہیں پاؤں اس کے آواز پڑھتے ہیں پاؤں راستے اس بے مہار کے ہو کارواں کا میر وہ منزل کرے سلام پڑھتے ہیں پاؤں راستے اس بے
मुहार के। बहुत उम्दा, बहुत खूब। बहुत खूब। और क्या है? मक्ता रह गया एक अभी। शेर और रह गया। कहाँ है? भैया एक शेर तो रह ही गया, बस वो रह गया तो रह गया। मक्ते का है ना वो, भंवरे हो तितलियां हो के साथ शिकस्ता अख्तर। साहब मक्ता इरशाद फरमा तितली भौरे हो तितलियां हो के साजे शिकस्ता तार। मैं क्या बात दूसरा है। मिसरा याद नहीं है मेरे। फिरते हैं आगे पीछे इसी गुलजार के, फिरते हैं आगे पीछे उसी गुल अजार के। भौरे हो तितलियां हो के साजे शिकस्ता तार। फिरते हैं आगे पीछे उसी गुल अजार के। भैया आवाज ने धोखा दे दिया, आई एम सॉरी। कोई बात जनाब साज दहलवी साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, और आप तशरीफ लाए इसके लिए हम आपके शुक्रिया हैं। शुक्रिया। जी जी। और अरे मैं यार देर हो गई, आवाज ने कर दिया काम खराब। कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। मगर कलाम अल्हम्दुलिल्लाह कलाम पहुंच गया। महसूस हुए आपके कलाम से। अब मैं जनाब अली बरकी आजमी जो सदर मुशायरा हैं, शुक्रिया बहुत बहुत आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ममनून। आपने याद किया, आपने पसंद किया, यही बहुत है। आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस सआदत है। इंशाल्लाह आप आगे भी तशरीफ लाइएगा, हम आपके मुंतजिर रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिए आवाज सही हो जाए। जी इंशाल्लाह। असरार साहब को सुनना चाहेंगे भैया? असरार साहब ने कुछ सुनाया नहीं। मैंने एक मतला का जो हुआ था वो मैंने पेश कर दिया। अब डॉक्टर अहमद अली बरकी आजमी साहब से सदारती खिताब से पहले अगर कोई साहब और अपना कलाम सुनाना चाहते हैं तो प्लीज बताएं, क्योंकि सदारती खिताब के बाद तो महफिल खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके पास जखीरा है काफी, तो आपने कुछ सुनाया नहीं आज, क्या बात? ज़खायर कुछ और सुनाइए, कुछ और सुनाइए आप हमारे और अगर और सुनाइए। अच्छा कुछ और सुना दूं? बरकी भाई से बिल्कुल सुनाइए। अच्छा एक मिनट सर, मैं अभी पेश करता हूँ। जी अच्छा मुलाहिजा फरमाए। बहुत बहुत मैं आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दोबारा मौका मिल गया चंद शेर सुनाने का। मसला है वो क्या गया कि शहर का नक्शा बदल गया। जी वो क्या गया कि शहर का नक्शा बदल गया, कहने को एक शख्स था दुनिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया नवाजिश। वो क्या गया कि शहर का नक्शा बदल गया, कहने को एक शख्स था दुनिया बदल गया, और सब बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहुत उम्दा मसला है, बहुत उम्दा। वाह 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 जी, बहुत शुक्रिया सर। और सब दोस्त दुश्मनों की निगाहें बदल गईं। क्या बात। सब दोस्त दुश्मनों की निगाहें बदल गई। सब दोस्त दुश्मनों की निगाहें बदल गईं। तुम क्या बदल गए कि जमाना बदल गया। क्या बात। वाह। सब दोस्त दुश्मनों की निगाहें बदल गईं। तुम क्या बदल गए कि जमाना बदल गया। वाह वाह वाह। और एक शेर देखिएगा जरा, अलग अंदाज का हुआ है कि आज के सियासी पस मंजर में मुलाहिजा फरमाएं कि किरदार है जमूरे का जमहूर के लिए।
इज़हार है जमूरे का जमहूर के लिए और बदला मदारी खेल तमाशा बदल गया। है जमहूरे का जमहूर के लिए बदला मदारी खेल तमाशा बदल गया। और ये शेर बतौर खास समाअत फरमाए कि कच्चे मकाम में उसके बड़े नर्म बोल थे, कच्चे मकाम में उसके बड़े नर्म बोल थे, पक्के मकाम में आया तो लहजा बदल गया। क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया। कच्चे मकाम में उसके बड़े नर्म बोल थे, पक्के मकाम में आया तो लहजा बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अब और अगर कोई साहब या हमारे शायरात में से कोई सुनाना चाहे अपना कलाम तो मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद, आपका इस्तकबाल है। आप जो भी सुनाना चाहे सुना सकते हैं, नहीं तो मैं सदर साहब को फिर दावत दूंगा सदारती खिताब के लिए। चार में से मैं भी पेश करती हूँ। अच्छा, मैं भी सुनाना चाह रही थी, दो किताब। आँखों में जागते रहे रातों के रत जगी, आँखों में जागते रहे रातों के रत जगी, दिन की सुनहरी धूप में क्या हो गए हैं हम, दिन की सुनहरी धूप में क्या हो गए हैं हम, और मौसम ने फिर लिबास बदलना शुरू, मौसम ने फिर लिबास बदलना शुरू, पत्तों की तरह गिर के फना हो, पत्तों की तरह गिर के फना हो। और पेश करती हूँ कि जिंदगी में हर घड़ी एक किस्म की मखलूक, हर कदम पर आपकी हमने कमी, हर कदम पर आपकी हमने कमी, पहले से ज्यादा तेरी चाहत है, पहले से ज्यादा तेरी चाहत है, बेहतर बात हमने पूछिए उनसे जिनके प्यारों को साथ जबरन ये अपने लेके गई। वाह, और ये कहता है हालात हाजरा पर, इरशाद, जल्द दोज़ख को सिधारो जालिमो, जले दिल की दुआ है, समझ लीजिए। जल्द दोज़ख को सिधारो जालिमो, भर चुकी हैं गठरियां अब पाप की, भर चुकी हैं गठरियां अब पाप की, कुर्सियों से यूं चिमट कर रह गए, कुर्सियों से यूं चिमट कर रह गए, वाह, हो ये जागीरें तुम्हारे बाप की। वाह, वाह। और एक शेर बस और, रोनते आए थे अब तक सिर्फ कमजोरों को जो, रोनते आए थे अब तक सिर्फ कमजोरों को जो, चूर हो जाएंगे चट्टानों से जब टकराएंगे, चूर हो जाएंगे चट्टानों से जब टकराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी आप सबके शुक्रगुजार हैं। अब मैं जनाब डॉक्टर बरकी आज़मी साहब से अगर इजाजत हो तो आखिरी में एक दुआ या 2-3 शेर पेश करना चाहूंगा।
ارشاد عالی. کیونکہ حالات کے اعتبار سے جو جس دور سے ساری دنیا گزر رہی ہے جی جی کہ تناظر میں ایک دعا کے 2-3 شعر سماعت فرمائیں بس. تیری جانب اٹھے دستے دعا ہیں الہی مانگتے تیری رضا ہیں الہی مانگتے تیری رضا ہیں. بہت خوب. انہی کے نام سے مانگوں دعائیں وہی جو دافع رنجو بلا ہیں وہی جو دافع رنجو بلا ہیں. خدایا بھیج رحمت کی ہوائیں خدایا بھیج رحمت کی ہوائیں بھیج رحمت کی ہوائیں بلاؤں میں گھرے بے آسرا ہیں الہی لاج رکھ لینا ہماری تیرے محبوب کے در کے گدا ہیں تیرے محبوب کے در کے گدا ہیں دعاؤں کا ملے صدقہ نبی کے وہی جو عظمت غار حرا ہیں وہی جو عظمت غار حرا ہیں سخی کو ناز ہے نسبت پہ اپنی میرے آقا حبیب کبریا ہیں میرے آقا حبیب کبریا ہیں تیری جانب اٹھے دستے دعا ہیں الہی مانگتے تیری رضا ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا اور آپ کی تنظیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع عنایت فرمایا بالخصوص صدر محترم جناب احمد علی برقی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع عنایت فرمایا اور تمام احباب کا شکریہ کہ آپ نے پذیرائی فرمائی. شکریہ جزاکم اللہ خیر. آخر میں
सदर महफिल जनाब डॉक्टर बरकी आजमी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मुशायरे के बारे में और हमसे जो भूल चूक हुई है उसके बारे में अपने सदारती तकरीर में इसकी अच्छाइयों बुराइयों पे, इसकी खूबियों और खराबियों पे एक नज़र डालें। अब उनको मैं सदारती तकरीर के लिए दावत देता हूं जनाब सदर मोहतरम डॉक्टर बरकी आजमी साहब। शुक्रिया नवाजिश। चंद शेर जिगर की जमीन में सुन लें, इसके बाद नाकाबिले इजहार है जज्बात का आलम, नाकाबिले जज्बात है इजहार का आलम, उस रश के निगारां से मुलाकात का आलम, उस रश के निगारां से मुलाकात का आलम, शर्माना मुझे देख के उसका पसे पर्दा, शर्माना मुझे देख के उसका पसे पर्दा, और चेहरे ज़ेबा पे हिजाबात का आलम, क्या बात ज़ेबा पे हिजाबात का आलम, हर बात पे वो रूठना फिर मेरा मनाना, हर बात पे वो रूठना फिर मेरा मनाना, ताखीर से आने की शिकायत का आलम, ताखीर से आने की शिकायत का आलम। अब पुरसिश अहवाल को आए हो कहाँ से, अब पुरसिश अहवाल को आए हो कहाँ से, मिलने और बिछड़ने पे सवालात का आलम, मिलने और बिछड़ने पे सवालात का आलम, रह रह के अंधेरे में वो बिजली का चमकना, रह रह के अंधेरे में वो बिजली का चमकना, तूफाने बलाखीर में बरसात का आलम, तूफाने बलाखीर में बरसात का आलम, है नक्श मेरे दिल पे वो यादों का तसलसल, है नक्श मेरे दिल पे वो यादों का तसलसल, पुरकैफ है गुजरे हुए लम्हात का आलम, पुरकैफ है गुजरे हुए लम्हात का आलम, भूला है न भूलेगा ये अहमद अली बरकी, भूला है न भूलेगा ये अहमद अली बरकी, दुज़दीदा निगाहों से इशारात का आलम, दुज़दीदा निगाहों से इशारात का आलम, नाकाबिले इजहार है जज्बात का आलम, उस बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। और माशाल्लाह आज का बहुत कामयाब मुशायरा रहा, और खास तौर से मुईज़ भाई और उनके रफ़ाकार तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि दियार गैर में रहकर इस तरीके से सूद ज़िया से बेनियाज होकर और गैर मामूली ज़बान अदब की खिदमत कर रहे हैं। और मेरे लिए भाई से इफ्तिखार है कि आज मोहतरमा रज़िया अकादमी से शर्फ नियाज़ हासिल हुआ, और इसका क्रेडिट जो है मुईज़ भाई को जाता है। इसके अलावा तमाम अहबाब ने बहुत ही मेयारी बरस्ता कलाम सुनाए, और ये कामयाब तरीन नशिस्त थी, जिसके लिए मैं सबको सही में क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत शुक्रिया बरकी साहब, और आप लोगों से रूबरू मुलाकात हुई। महफिल मुशायरा के जनाब मोहम्मद मोइज़ खान साहब को दावत देता हूँ कि वो तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करें। मैं तहे दिल से आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस मुशायरे में शरीक होकर इस मुशायरे को इज्जत बख्शी, और इसमें रौनक जो है रौनक आ गई इसमें। और इसमें बड़ा क्रेडिट तो हमारे डॉक्टर बरकी साहब को जाता है कि उन्होंने इतने सीनियर शोरा को जो है यहाँ पर इकट्ठा किया, जिन्हें हमें सुनने और खास तौर से मैं नगार बाबा नाज का और सखी सरबस का शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग आए, और उम्मीद है कि आइंदा भी जो है हमारी महफिल की रौनक बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें हैं इंशाअल्लाह। मोहतरमा रज़िया काज़मी साहिबा, निगार नाज साहिबा, जनाब साज दहलवी साहब, जनाब सखी सरमत साहब, और जनाब इसरार राजी साहब, और सदर मोहतरम डॉक्टर बरकी साहब, मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इसमें शिरकत करके इसको जो है रौनक बख्शी और ये इसको कामयाबी हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम